Hello guys, welcome to Edugiri, welcome to the analysis of Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. चलिए start करते हैं आज का analysis and I want to clap for you all a big I'm clapping. Imagine I'm clapping because if I clap on the mic, like the mic, it's going to be irritating for you, I suppose. So imagine that I'm clapping for you. Of all of you who shared their opinions about the question that I asked in the previous lecture class, I'm so happy that you guys formulated an opinion, and a lot of you disagreed with me. I'm so proud of you, and those of you even added to my own opinion. I'm so thankful because I want that my educators who are watching my this class, they should be those citizens of India who have an opinion of their own. Just very important. I mean, बहुत पहले से हम लोग यही कर रहे हैं. हम लोगों को जो कोई बता देता है हम उसको अग्री कर जाते हैं without even adding our own opinion to it. What I mean to say is you should know the facts, what is the reality, what is happening, and then you can hear the opinion of people, and then it is very important to have your own opinion. You apply your own head to it and then you formulate an opinion. You just don't copy and paste. And if I'm able to create that army of educators, I'd be really proud of you guys more than me. So yeah, thanks for sharing your opinion. I'm so proud of you. Okay, let's get started with today's thought of the day. I'm able to succeed in anything that I do, that I decide to do. This is the absolute truth. But the point is, do you believe in it? I'm going to read it again. I am able to succeed in anything that I decide to do. Very important thought. मैं जो भी ठान लूँगा करने के लिए मैं जो भी ठान लूँगी करने के लिए मैं वो कर दूँगी, मुझे पता है. बट क्या मैं इसमें यकीन रखती हूँ? You meet a lot of people who say, अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना तो मैं उसको करके ही सांस लेती हूँ. Can we be those people? Yes, we can be, because our thoughts are very important and we need to remember the kind of talk that we give when we are sitting idle. जब हम free बैठे होते हैं जो talk हम अपने आप को देते हैं वो talk है जो हमें बहुत जगहों पे ले जाती है. Right? Let's get started with today's analysis. I think the intro went too long, but that's fine. चलो स्टार्ट करते हैं. पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्राइम बिल्स. तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है. क्या ट्राई कर रही है इंडियन गवर्नमेंट? कि जो क्राइम बिल्स हैं, जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना, जो डिफाइन करता है दैट व्हाट इज एन ऑफेंस एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच इज डिफाइंड, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, बी इट इंडियन पीनल कोड, बी इट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बी इट इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, ये सब क्राइम से डील करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, अरेस्ट करना है तो कैसे होगा, बेल होगा तो कैसे होगा, ये प्रोसीजर में दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में. एविडेंस, कौन सा एविडेंस लेना है, अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इन द एविडेंस एक्ट डिफाइनिंग कि ये ऑफेंस है या नहीं है, इंडियन पीनल कोड. राइट, सो ऑल ऑफ दिस इज दीज आर द लॉज ऑफ इंडिया. ठीक है, अब इसके अंदर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो चाहती है देयर शुड बी अ चेंज, लॉज शुड बी चेंज्ड. व्हाई? बिकॉज वो कह रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉज हैं. ठीक है, बहुत पुराने लॉज हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे के लॉज हैं, तो देयर नीड्स टू बी अ चेंज. वॉट एवर आई एम राइटिंग इज राइटिंग फॉर एक्सप्लेनेशन. यू डोंट नीड टू राइट राइट नाउ टिल द टाइम आई डोंट से राइट. ठीक है, तो या दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बट अब यहाँ पर क्या हुआ है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. तो सबसे पहले क्या हुआ, let's understand the process, and if I seem कि मुझे सांस चढ़ा हुआ है तो actually चढ़ा हुआ है, deal with it for a second. Now, okay, I need to make you understand that proposal. ठीक है, what is a bill? Proposal. Bill is a proposal. ठीक है, बिल क्या होता है? प्रपोजल, कि ये लॉ ऐसा होना चाहिए, कुछ चेंज है लॉ के अंदर. ठीक है, ये प्रपोजल लेकर आते हैं, पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. ठीक है, और अगर पार्लियामेंट से जिस तरीके से प्रोसीजरल अप्रूवल चाहिए होता है वो मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, और फिर हम लोगों को वो फॉलो करना होता है. राइट, मतलब क्या है, एक बिल है, देयर इज अ बिल, बिल इज अ प्रपोजल कि ऐसा लॉ होना चाहिए, ये चेंज लेकर आते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट में जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड. That becomes the law of the land, right? So that is, what is it? That's what happens. Now criminal law के अंदर क्या हुआ, criminal जो वाला बिल है, प्रपोजल आया कि criminal laws को पूरा चेंज कर देते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया वर्ल्ड में, let's bring the change.
ओके अब इसके अंदर यहाँ पर पार्लियामेंट में कभी कभी कुछ बिल्स जो होते हैं वो कमिटी को रेकमेंड कर दिए जाते हैं कि आप देखिए इसमें क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, इसको स्टडी करिए। ठीक है, अब वो कमिटी के पास बिल गया हुआ था, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स पोस्टपोन्ड इट्स अडॉप्शन ऑफ अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन 3 bills सीकिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज आफ्टर प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी सीकिंग मोर टाइम टू एग्जामिन इट। ठीक है, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि हमें और टाइम चाहिए इसको एग्जामिन करने के लिए, तो पोस्टपोन कर दिया है उसका जो रिपोर्ट वगैरह है। दे आर डिमांडिंग सेवरल चेंजेस इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 दैट विल रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दैट विल रिप्लेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पर अगर आपने जब ये लॉ और ये प्रपोजल फॉर द फर्स्ट टाइम आया था तो आई रिमेंबर हमने एक टेबल बनाया था। इफ यू हैव क्रिएटेड दैट टेबल वेल एंड गुड, इफ यू हैवंट क्रिएटेड दैट टेबल देन यू नीड टू मेक इट टुडे। ये आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म चेंज, क्रिमिनल लॉ चेंजेस, criminal law changes, right? Now the very first thing that you're going to do is हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंडियन पीनल कोड, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023, and then we have भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये हिंदी नेम्स दिए जा रहे हैं इन बिल्स को। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो रेज कर रही है ऑपोजिशन की हिंदी नेम्स क्यों दिए जा रहे हैं। तो अभी जो लॉ जिसको ये कहते हैं इंडियन पीनल कोड कहते हैं वो क्या बन जाएगा अगर बिल पास हो जाता है, भारतीय न्याय संहिता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बन जाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, अगर ये पहले आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, डोंट नोट इट अगेन, यू डोंट नीड टू। जो सेकंड पॉइंट बन रहा है वो कहते हैं द पैनल्स रिपोर्ट स्टेट्स दैट सिंस द टेक्स्ट ऑफ द बिल इज इन इंग्लिश इट डज नॉट वायलेट प्रोविजंस of Article 348 of the Constitution. Now, what is Article 348 of the Constitution? Let's give it a quick reading. Now, language. ठीक है, 348 language to be used in Supreme Court and in the High Courts and for acts, bills and now what are the acts? Acts are laws. Acts are laws. जिनको स्टैचू भी बोलते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा स्टैचू, लॉ, एक्ट्स जो हम देखते हैं वो येलो येलो बुक। आप कभी किसी लॉयर के ऑफिस में जाएंगे आप बहुत सारे येलो देखेंगे बुक्स जो होती हैं, छोटी छोटी सी भी होती हैं, मोटी मोटी सी भी होती हैं। दीज आर बेयर एक्ट्स, दीज आर लॉ एज इट इज, जैसा कि लेजिस्लेचर ने बनाया, जैसा कि पार्लियामेंट ने लॉ दिया वो वैसा का ही वैसा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ लॉ जैसा होना चाहिए। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल द बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडमेंट्स देयर टू बी मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इन द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट of all acts passed by parliament or the legislature of a state and of all ordinances promulgated by the president of the governor or the governor of a state and of all orders, rules, regulations and bylaws issued under this constitution or under any law made by the parliament or the legislature of the state shall be in English language. What are they saying? That the language should be English. That the language should be English. ठीक है ना, मतलब English language मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है ना, आर्टिकल 348 क्या कहता है, इंग्लिश लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट्स दैट इज लॉज। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर लैंग्वेज क्या बनती है कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी जाएगी। कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाएगी, इंग्लिश। और यहाँ पे किसी ने बोला कि आर्टिकल 348 को वायलेट करती है, तो ये कहा जा रहा है कि 348 वायलेट नहीं होता क्योंकि जो लैंग्वेज ऑफ द एक्ट है, जो नए लॉज डिस्कस करे जा रहे हैं वो इंग्लिश में है, तो वायलेट नहीं होता है आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
फेयर एनफ, यही हमको पढ़ना था यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था पिक्टोरियल, क्राइम एंड पनिशमेंट। देयर आर सम ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द स्टैंडिंग कमेटी एज पर द ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेटेड। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस हैं। सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी बी रिटेन फॉर केसेस ऑफ नॉन कंसेंचुअल इंटरकोर्स विद एडल्ट्स, ऑल एक्ट्स ऑफ कार्नल इंटरकोर्स विद माइनर्स एक्ट। द ड्राफ्ट रिपोर्ट सीक्स टू रिटेन section 497 IPC on adultery, making it gender neutral. It recommends that handcuffs should not be used on economic offenders. It rejects the opposition's contention on the Hindu nomenclature of the bills. राइट तो यहाँ पर क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें द रिपोर्ट दैट हैज कम अप, उन्होंने कुछ कुछ सेक्शंस के बारे में बात करी है। राइट, सो वी विल हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट दीज सेक्शंस। वील कम बैक एंड स्टडी बिकॉज दिस इज मोर इन डिटेल, मतलब इतना डिटेल में वैसे हमें जाने की जरूरत है, बट थोड़ी सी नजर मारेंगे टुवर्ड्स दी एंड, वो भी सिर्फ क्लैट वाले बच्चों के लिए। सो टुवर्ड्स दी एंड वी आर गोइंग टू कम एंड स्टडी दिस। राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। Dark pattern sales by airlines, online agents deemed cyber crime. What is this? डार्क पैटर्न सेल्स क्या है और किस चीज़ को साइबर क्राइम डिक्लेयर किया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि हाँ ये साइबर क्राइम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। फॉलोइंग कंप्लेंट्स अबाउट प्रैक्टिस बाय एयरलाइंस एंड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स दैट इंटेल ट्रिकिंग कंज्यूमर्स इनटू मेकिंग अनइंटेंडेड परचेजेस। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ट्रिक कर रहे हैं कंज्यूमर्स को कि वो अनइंटेंडेड परचेज जो है वो करें। सच अनअटेंडेड purchases such as paying for seats while booking flight tickets, which one government official called a cyber crime. ठीक है ना, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो जब आप टिकट बुक करवा रहे हो, this has happened to me also, so I can give you that thing. When you book a ticket with some of the airlines, especially Indigo, you know what happens? You book a ticket, you pay good whatever 5,000, 10,000, 12,000, whatever is the cost of the ticket, and then when you say okay, and then they bring a structure of the एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर ले आते हैं ऐसा सा, ठीक है, और फिर बोलेंगे ये 150 रुपीज़ की है, ये 300 की है। बीच वाली जो सीट होती है, जो 3 की सीट होती है, बीच वाली जो सीट होती है वो सबसे सस्ती होती है, एंड देयर इज नो सीट दैट इज फ्री। आई मीन यू आर पेइंग 12,000 एंड देन यू आर पेइंग 150 और 300 एक्स्ट्रा पर सीट। यू आर पेइंग फॉर the seat that you choose, and there's no free seat, so you're forced to choose and you're forced to pay extra. Happens more so with Indigo. The Ministry of Civil Aviation has asked low cost carrier Indigo to rectify its website. Right, so this is being called as a डार्क पैटर्न। की डार्क पैटर्न क्या होता है? जब आप किसी को ट्रिक कर रहे हो कि और पैसे दो, कुछ परचेज करो, ठीक है, विच इज नॉट राइट। इफ अ पर्सन हैज पेड 12,000 फॉर व्हाट? फॉर अ सीट, ऑब्वियसली दे हैव नॉट पेड इट दैट। अगर सिर्फ 12,000 दोगे, यू विल नॉट पे 300, you will not pay 150 odd rupees for this seat, you will stand. It's not like that. So ये बोला जा रहा है कि it's kind of a cyber crime that Indigo is committing. What is your opinion about that? I want to know. It is a very very interesting proposition. I think that should not happen यार। 12,000 पे कर रहे हो और फिर तुम मांग रहे हो पैसे। Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh said a dark pattern is one where an entity nudges consumers to buy products they didn't intend to, which is an unfair trade practice and can constitute a cyber crime. Now, what is a dark pattern? Let's write it down. Dark pattern is one where an entity nudges consumers to buy products they didn't intend to, which is an unfair trading practice and can constitute a साइबर क्राइम। आप किसी को फोर्स कर रहे हो, आपको किसी ने 12,000 रुपये कर दिया, आप आगे जा रहे हो और आगे जाके आप कह रहे हो कि अगर टिकट बुक करनी है आपको, देन यू हैव टू चूज अ सीट विच इज पेड। देयर इज नो फ्री सीट, यू हैव टू पे दैट 150 300 रुपीज वॉट एवर इट इज। राइट, सो वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डार्क पैटर्न, दिस इज नॉट डन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एंड डू शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस। इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज लॉन्ग बीन क्रॉनिकल्ड थ्रू अ मेल लेंस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नोबेल मेमोरियल
prize in economic sciences. ठीक है. नाउ क्या हुआ यहाँ पे, जो ऑर्डर है वो बहुत ही दुखी है. वो कह रहा है कि देखो, ठीक है, सिंस 1969, इससे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये प्राइस कब स्टार्ट हुआ था, इकोनॉमिक्स वाला 1969 में स्टार्ट हुआ था, राइट. 1969 से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो कितने मेन को मिला है. वो कह रहे हैं 90 men have received the award and only 3 women have received the award since then. ठीक है. And who are those 3 women? The first one was, तो यहाँ पे हम टेबल बना ले तो बहुत ही सही रहेगा. द फर्स्ट वुमेन हु टू रिसीव द अवार्ड वाज, वील राइट डाउन फर्स्ट एंड देन वील राइट हर नेम, दैट इज एलिनोर. ठीक है, नॉर का सूप होता है, एलिनोर ऑस्ट्रॉम. ठीक है, स्ट्रॉम, शी वाज अ स्ट्रॉम because she did something which no one else could do probably. Eleanor Ostrom. Now, what did she do? She won the prize in 2009. Okay, this is something we need to write. Okay, sorry for my uneven lines. I can have a straight line. I have the facility to do so, so I'll do that. 2009, and yeah, for explaining. Now let's write down here only for explaining. How local communities, most of them in developing countries govern themselves. ठीक है ना. तो लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो कैसे अपने आप को गवर्न करती हैं, ये इन्होंने सर्च किया था और इसीलिए इनको इकोनॉमिक प्राइज मिला था. ठीक है. नाउ द सेकंड वन टू रिसीव द प्राइज वाज, लेट्स मेक इट स्ट्रेट लाइंस अगेन सो दैट देयर इज सम क्लैरिटी. आई एम सो सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ आर्ट विच इज नॉट आर्ट. चलो, एस्थर डफलो. ठीक है, डफलो, खा लो डफलो. इफ यू हैव अ पंजाबी फ्रेंड, वो बहुत ये यूज करते हैं वर्ड. तो नाउ द सेकंड थिंग इज buffalo and dufflo. They are also like a striking words. Dufflo. Now this is 2019, 10 years after. Easy to learn. For her experimental work in elevating global poverty. ठीक है, इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी पे कुछ काम किया, 2019 में जीता. शी वॉज अ सेकेंड वुमेन. देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इस बार किसने अवार्ड जीता, ये पूछा जा सकता है कि ये किसने, हु हैज वन who won the first prize, Nobel Prize economics as a woman, when the award started 1969. How many men have won and how many women have won? This is a very very important question. That is why I'm spending some time here. The third thing is, तीसरी जो वुमेन को मिला उसका नाम मैंने तुमको रटा रखा है, क्लाउडिया गोल्डन. ठीक है ना. एंड व्हाई डिड शी वन द प्राइज? 2023 में, इसी साल जीता है. 2009 2019 इज इजी. फॉर हर वर्क, राइट इट डाउन, फॉर हर वर्क explaining why women earn less money than men, even when they do the same work. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी है कि देखो, जो वुमेन है वो घर संभालती है, बट नो वन वैल्यूज इट. इट इज एन अनपेड जॉब. नो वन वैल्यूज इट. What is valued? The one who's earning money, right? But she's also doing a job which is not being valued. She's not paid equal also for not what kind of work she is doing. ठीक है ना. तो ये इन्होंने बात करी है, and this is a very very important question, most expected. यहाँ पर जो ऑर्डर है वो और आगे जाता है, इंडियन वुमेन के बारे में बात करते हैं, बट वो बात करते हैं G20 के कॉन्सेप्ट के बारे में. व्हाट वाज द थीम? India's vision is Vasudevai Kutumbakam, which means one family, one earth, one future. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो यू कैन नोट इट डाउन. चलिए आगे चलेंगे. मिस्ट्री ट्रायल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन कतर? कतर के अंदर हमारे जो 8 फॉर्मर
इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं उनको डेथ सेंटेंस की सजा दे दी गई है. क्यों? बिकॉज दे आर एक्यूज्ड ऑफ एस्पियनेज. नाउ व्हाट इज एस्पियनेज? कि कतर से रिलेटेड कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पर दे रहे हैं विच इज नॉट अलाउड. ठीक है, अब यहाँ पर the trial was shrouded, that is, it happened in secrecy. Not many knew about it. There is very less information about the trial, that why they are being punished, क्या किया है उनके against, evidence क्या है. We don't know anything. They were arrested in 2022. Now what is important? 8 Indian men who belong to who are the officers of Indian Navy, former officers हुआ करते थे, have been sentenced to death by Qatar for espionage. This is a very important question. We need to note it down. चलिए लिखेंगे. Qatar trial court death sentence to 8 Indians. Why? Accused of espionage, were arrested in August 2022. Now, what is it? अब वो बात करें कि हमारे कतर के साथ रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड में क्या कर रहे हैं हम. इंडिया सोर्सेज 40% ऑफ इट्स LNG नीड्स फ्रॉम कतर. इंडिया इज ऑल्सो कतर्स थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स. ठीक है, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फ्रेश फूड आइटम्स. दी सप्लाईज कॉन्टिन्यू डिस्प्राइड. मतलब हम लोगों का कतर के साथ अच्छा रिलेशन रहा है. इवन जब गल्फ ब्लॉकेड लगा था, मतलब गल्फ कंट्रीज का कतर के साथ रिलेशन बेकार हो गया था 2017 के अंदर, और उन्होंने कहा था कि इस कंट्री के साथ ट्रेड मत करो, अवॉइड करो, तब भी इंडिया जो था इनके साथ ट्रेड कर रहा था. तो हमारा रिलेशन जो है कतर के साथ वो कुछ ऐसा सा है. ठीक है ना. तो देख रहे हैं कि क्या मतलब गए या बचा सकते हैं. तो LNG इज liquefied natural gas. Liquefied natural gas. Now, if you're preparing for CLAT, only CLAT, then note down these points. नहीं तो बाकी सबने अगर रीडिंग ले लिया तो that's more than enough. 40% LNG from Qatar. At India sources 40% LNG from Qatar. What is the full form of LNG? यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, और हम Qatar third biggest source of India is also India is also Qatar's third biggest source of imports, particularly raw material ने ये सब कुछ. चलो हम ये वाला पार्टी लिखे. ठीक है, और 2017 में भी हमने कंटिन्यू रखा जब दूसरे कह रहे थे कि मत लो इनसे. We were maintaining our relations. And then comes the Palestine issue. Now Qatar backs Palestine. They are against Israel very openly, notwithstanding reports that seek to tie the verdict to more geopolitical considerations, including perceived Qatari differences with India over its policy on Israel, Palestine in the current. ठीक है ना. तो हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारा. क्या मतलब हमें लिया जाता है कि हम लोग पैलेस्टीन की साइड नहीं है, हम ज़्यादा इजराइल की साइड है. ठीक है, वेल ओपनली नथिंग इज बीइंग सेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. वी आर सपोर्टिंग बोथ द कंट्रीज इक्वली इन फॉर्म. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के साथ भी खड़े हैं, या फिर हम क्लियर कट अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं और पैलेस्टीन के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ कतर खड़ा है. मे बी दैट इज़ वाई आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर ये चीज़ करी गई है. ठीक है ना. तो ये भी बोला जा रहा है. Another honeymoon. 6 years ago, Nawaz Sharif. Now we have read about Nawaz Sharif. Who is he in the chat section? Former PM of Pakistan. And उनके against क्या था? Corruption के charges थे. He was convicted. Even though he was convicted, he was not jailed because he ran away to London. Right? Coming back because वो जो conviction है उसके अंदर बहुत कुछ changes कर दिया गया है. He won't be arrested and he'll be fighting elections. Right? तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से. 6 years ago, Nawaz Sharif, the Pakistan Muslim League Nawaz leader and 3 times Prime Minister, was ousted from power after he fell out with the powerful military establishment. In the subsequent election, the Pakistan Tehreek-e-Insaf of Imran Khan, then a daring of the establishment, was voted to. Darling.
यू नो व्हाट, पाकिस्तान के अंदर वही पार्टी जो है पावर में आती है जो आर्मी को पसंद है। अगर आप आर्मी को पसंद नहीं हो एज अ पार्टी इन पाकिस्तान, एज अ पर्सन इन पाकिस्तान, यू कैन नीदर बी द प्राइम मिनिस्टर नॉर योर पार्टी कैन रूल पाकिस्तान। सो आर्मी plays a very very important role in deciding who's going to rule the country, right? It is backed by army always. If the army doesn't like you, for example, Imran Khan was a darling of army once upon a time, ठीक है, एक टाइम पर ऐसा था कि वो आर्मी के फेवरेट थे, बट फिर आर्मी के ही अगेंस्ट इमरान खान खड़े होने लग गए, उनको क्वेश्चन करने लग गए, तो आर्मी ने उनको खत्म कर दिया। आज की डेट में इमरान खान जो है वो जेल में है, जो भी उनकी पार्टी के लोग थे वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, ज्यादा लोग पार्टी में नहीं है, राइट तो वहां पर ये सीन है। अब जो है आर्मी किसके क्लोज है? नवाज शरीफ के क्लोज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पार्टी है उसके क्लोज है, एंड दे वांट them to be in power, तो वो सब कुछ माफ करवा रहे हैं। Mr. Sharif was disqualified and jailed while his party accused the military of rigging the election in favor of PTI. In 2019 he went into exile, ठीक है, तो तब इनकी किसके साथ बन रही थी जब इलेक्शंस हुए? आर्मी किसकी तरह थी? तहरीके इंसाफ की साथ थी, ठीक है, और इन लोगों ने जो मुस्लिम लीग नवाज पार्टी है उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो थे उसके अंदर कुछ अनफेयरनेस करी मिलिट्री ने, ताकि कौन जीत जाए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत जाए, बिकॉज वो फेवरेट थी आर्मी की। तो जो आर्मी का फेवरेट होता वो था, तब 2019 में वो एग्जाइल में लंदन चले गए, ठीक है, बट अब आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए इमरान खान, तो इमरान खान को भी इन्होंने बहुत बहुत दबा दिया है, बट नाउ ही हैज कम बैक टू फाइट इलेक्शंस। नाउ इंडिया चाइना के बारे में बात हो रही थी एडिटोरियल में, इन वन ऑफ द एडिटोरियल्स दे वर टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? 1950 चाइना एंड इंडिया jointly initiated the 5 principles of peace coexistence, which has turned into basic norms governing international relations. As two largest developing countries and emerging market economies, each with a population of over 1 billion, China and India are both at a crucial stage of development and revitalization. Right, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 1950 के अंदर China and India, write it down, China and India jointly initiated the 5 principles of peaceful coexistence, ठीक है ना? बेसिक लॉज, बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ना? इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे गवर्न करने हैं वो हमने 1950 में इंडिया और चाइना ने साइन किए थे, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो है चाइनीज उसने लिखा है, एम्बेसी की एक वुमेन बिलोंगिंग टू देयर ऑफिशियल हैज रिटन, तो ठीक है, शी इज टॉकिंग अबाउट कैसे इंडिया और वो कर सकते हैं, हमारे यूज का नहीं था कुछ भी। Now this is uneasy and fear prevailed in villages near the zero line in the Arnia sector of Jammu after an 8-hour skirmish between Indian and Pakistani troops. तो वहाँ पे जो फायर हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हुई है जम्मू एरिया में, and I don't know, not many of you will know that, but we should know that as Indians that what is happening on our borders, ठीक है। तो या ये आपको पता होना चाहिए, बट नोट नहीं करना है। परस्यू ऑल लीगल पॉलिटिकल ऑप्शंस इन कतर से एक्सपर्ट्स, तो कतर वाला हमने सिचुएशन पढ़ा। अब यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा गया है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि क्या ऑप्शंस है इंडिया के पास। 2015 अग्रीमेंट on the transfer of sentenced prisoners in case India's appeal for clemency is accepted. In short, there is enough space to address the sensitive but unprecedented issue in a manner. तो यहाँ पर हमें इतना पता होना चाहिए कि 2015 के अंदर जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बन सकता है जहाँ से हमारा कि 2015 के अंदर 2015 इंडिया कतर अग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज agreement on the transfer of sentenced prisoners, ठीक है ना? जो सेंटेंस प्रिजनर्स हैं उनके ट्रांसफर की क्या हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पर इन मार्च कतरी फॉरेन ऑफिसर टू इंडिया, वन ऑफ द अग्रीमेंट सिग्नेड टू कंट्री वाज ट्रांसफर सेंटेंस पर्सन अंडर दिस अग्रीमेंट, ये लिखेंगे under this agreement Indian
prisoners convicted in Qatar can be brought to India to serve the remaining part of their sentence. ठीक है, तो क्या है इसके अंदर कि वो जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को सर्व करने के लिए, मतलब वहां पे सजा हो गई, ठीक है ना, कतर के अंदर सजा हो गई, तो हम अपने लोगों को इंडिया लेकर आ सकते हैं फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर सेंटेंस. दिस ऑप्शन इज अवेलेबल. ये हमने 2015 में अग्रीमेंट साइन किया है. इंडियन प्रिजनर्स कन्विक्टेड इन कतर कैन बी ब्रॉट टू इंडिया टू सर्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर सेंटेंस. सिमिलरली कतरी सिटीजन्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना, अगर इंडिया के अंदर उनके सिटीजन्स को सजा मिलती है तो वो अपने वाले वहां पर ले जा सकते हैं और सेंटेंस दे सकते हैं. फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं. इन 2008 इंडिया एंड कतर साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू दोहा इन नवंबर 2008 which has been extended every 5 years, the last time in November 2018. The agreement has not yet been renewed, an official source without elaborating further said, a possible indication of an opportunity for high-level negotiations in the near future. India also offers training slots in its defense institutions to Qatari military personnel and regularly participates in biennial Doha International Maritime Defense Exhibition and Conference DIMDEX in Qatar. तो यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है, एक हमें पता चलता है कि 2015 में हमने अग्रीमेंट साइन किया था किसके साथ, कतर के साथ. ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स. वाइस वर्सा है कि अगर हमारे वालों को वहां पे सजा मिली है तो हम अपने कंट्री में ले जा करके उनको प्रिजन में रख सकते हैं. मतलब कतर के अंदर सजा मिली तो हम वहां से लेकर आ सकते हैं और वो इंडियन जेल्स में रहेंगे. वैसे ही वाइस वर्सा इंडिया में सजा मिली तो हम कतर को दे देंगे और वो कतर का सिटीजन जो है वो कतर के जेल्स में रहेगा. ये हमने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है. एंड द सेकंड थिंग जो हमने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है वो है 2008 का अग्रीमेंट विच दे आर सेइंग इज अ डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट. 2008 इंडिया एंड कतर signed a defense cooperation agreement. ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू दोहा. नाउ इट इज renewed every 5 years, which is renewed every 5 years. Okay, cool. Now the next thing that we want to discuss is about third point. Third point is the exercise, that is DIMDEX. कौन सी एक्सरसाइज है, DIMDEX. अब DIMDEX क्या है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे. नंबर 1, डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कतर में होती है. ठीक है, ये क्या है, ये पूरी नहीं लिखी मैंने, सॉरी गाइस. दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस. ठीक है ना, इस एक्टिव में इंडिया पार्टिसिपेट्स, ये लिखेंगे हम, इंडिया पार्टिसिपेट्स. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमारे मतलब अच्छे खासे रिलेशन है उनके साथ, पर पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया है. ठीक है ना, और क्योंकि एक पाकिस्तानी वाले के साथ भी ऐसा होना चाहिए था, उनके साथ नहीं किया है, हमारे साथ क्यों ऐसा कर दिया है, तो ये क्वेश्चन वो देख रहे हैं. ठीक है ना, कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे, बुरे नहीं तो बहुत बुरे, नहीं तो बहुत अच्छे, नहीं तो बीच में तो है ही है. ठीक है ना, ये क्या है, इंडिया पार्टिसिपेट्स. ठीक है, नाउ दिस एक्सरसाइज इज अ biennial, that is happening once every 2 years. Happening once every 2 years.
ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी जो है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसके बारे में पहले हमने मेन इशू के बारे में पढ़ लिया था, उसके साइडलाइन इश्यूज भी हमने कवर कर लिए। कहा जा रहा है कि 80% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन कौन सी पॉपुलेशन होती है, जो सिटी में रह रहे हैं लोग, वो जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, हैज असेस टू व्हाट, हैज असेस टू हाई स्पीड इंटरनेट, सॉरी फॉर द बर्प, ठीक है ना। तो उनको क्या है, दे हैव असेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे हेल्ड telecom operators progress in spreading 5G coverage in urban centers, saying that over 80% of India's urban population now has access to high-speed internet technology. Is it important? No, that is not important. What is important is India Mobile Congress जो है वो कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, टेलीकॉम वाले क्या करते हैं क्या नहीं, वो ओवर द डेज हम वो पढ़ेंगे। बट राइट नाउ वी वांट टू नो कि 7th इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो कहाँ पर हो रही है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो रही है 7th, बहुत ही मोटा पेन हो गया है, इसको पतला कर लेते हैं। 7th edition, बाप रे बाप, 7th edition of इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी जो इसमें आर्टिकल में नहीं है, बट थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो अभी करना क्या चाहते हैं इसमें, द IMC 2023 aims to strengthen India's position as a developer, manufacturer and exporter of key cutting-edge technologies. During the program, Prime Minister awarded 100 5G use case labs to educational institutions across the country. The Prime Minister also inaugurated the exhibition hall at Hall 5 and took a walkthrough. He highlighted Prime Minister is an inspiration of millions. Okay. So we need to know about the theme and what is the aim, हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, this I am talking from my research which you cannot see, so लिख लेते हैं, IMC 2023 aims to strengthen India's position as a developer, manufacturer and exporter of key cutting edge टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना, तो इसके थ्रू वो यही कर रहे हैं, मतलब क्या इंडिया कर सकता है, लोगों को बता रहे हैं, ऑर्डर्स दिलवा रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि 7th एडिशन हुआ, ठीक है ना, कहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, थीम क्या है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, एंड वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज विच हैव नॉट रिटन राइट नाउ इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स पिक अप अ डिफरेंट कलर एंड राइट डाउन इंपॉर्टेंट इन योर नोट्स ऑल्सो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th एडिशन हो रहा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का न्यू दिल्ली के अंदर। थीम इज ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन मतलब कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ नया करते हैं, दिस इज द थीम। चलिए, विक्रम किक्ड अप 2 tons ऑफ लूनर डस्ट। ठीक है, मून की इतनी डस्ट जो है वो किक अप हुई। व्हाट इज विक्रम? Pause the video and write down, don't pause it, continue watching, please write it down that Vikram जो है, yes, तो विक्रम क्या है, विक्रम भैया क्या है, विक्रम is the lander or the rover, is the lander क्या है, जिसने लैंडिंग में हेल्प करवाई चंद्रयान 3 की। ठीक है, एंड रोवर क्या है, रोवर जिसने चल फिर कर, प्रज्ञान जिसका नाम है, जिसने घूम फिर कर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। तो विक्रम जब लैंड हुआ, ठीक है ना, उसने पूरी फीलिंग दी मून को, थप करके लैंड हुआ, और 2 tons ऑफ लूनर डस्ट जो थी वो ऊपर उठी। ठीक है, तो ये अब पता चल रहा है, और ये कैप्चर किसने किया, चंद्रयान 2 ने किया। जो बेचारा, मतलब उसका जो एक पार्ट जो है वो तो मून के को ऑर्बिट कर रहा है, मतलब मून के आसपास घूम रहा है, चंद्रयान 2 का उसने कैप्चर ये किया कि इतनी ज्यादा मिट्टी जो है मून की उसने उठा दी। ठीक है ना, तो हाँ, तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ पर Chandrayaan 3 lander module Vikram had generated an ejecto halo on the lunar surface while making the historic touchdown on the south pole of the moon on August 23. According to a new study, Vikram raised lunar dust and generated a bright patch around itself when it landing on the moon. तो इस bright patch को जो create किया, इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? Ejecto halo. तो ये लिखेंगे Chandrayaan 3's lander module Vikram generated ejecta halo on lunar surface. Vikram raised lunar dust and generated a bright patch around itself when it landed on the moon. ठीक है ना? तो that is what happened. Now I want to tell you one thing. ये ना थोड़ा motivational है. कभी तुमने सोचा है कि ह्यूमंस यहाँ पर थे, ठीक है, और विक्रम भैया वहां पे लैंड हो रहे थे? अगर ये मेरेकल हो सकता है तो क्या हम जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, वो हम पा नहीं सकते? अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि बिना एक इंसान के कोई चीज लैंड कर जाए, कोई चीज चल ले, वो वहां पर नहीं है, ठीक है, अगर वो हो सकता है तो क्या आप अपने ड्रीम्स नहीं फुलफिल कर सकते? Have you ever thought about it? Do share your comments about this because I really think about it. ठीक है, तो the Vikram lander of Chandrayaan 3 mission landed near the South Pole. During the action of descent stage thrusters and the consequent material got off lunar surface, epiregolith material got ejected, resulting in reflected anomaly ejector halo. मतलब वो एक ब्राइट पैच बना. चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो था उसने ये किसने ये फोटोग्राफ ली? एडेड high resolution imagery from the authors added that they compared the pre and post landing high resolution panchromatic imagery from orbiter high resolution camera of Chandrayaan 2 orbiter acquired hours before and after the landing event. ठीक है ना? तो before और after compare किया. India became the first nation to touch down in the moon's polar region when Chandrayaan 3 lander module with the rover. Can you tell me, there's a question for you. India became dash country to land on the moon? Answer. This is a very important question. And also, which countries have already landed on the moon? ठीक है. Mizoram has highest cancer incidence rate in India. तो ये कौन सी रिपोर्ट ने बोला है? कैंसर लिखेंगे. कैंसर अवेयरनेस diagnosis and treatment needs in Mizoram, India shows Mizoram has highest cancer incidence rate in India. ठीक है ना? तो हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट जो है वो कहाँ पर है? इंडिया में, मिजोरम में है, ये एक रिपोर्ट ने बोला है. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. नाउ वी आर ऑन टू द वर्ल्ड रिपोर्ट. क्विकली, वेरी लेस टाइम लेफ्ट नाउ. 2 lakh minors may have been victims of church sex abuse. Over 2 lakh minors may have been sexually abused in Spain by the Roman Catholic clergy. Clergy कौन होता है? जैसे हिंदुइज्म में पंडित हो गए, मौलवीज हो गए, मुस्लिम्स में they are the clergies, fathers, sisters in Christians. Since 1940, तो ये clergy जो थी, मतलब ये top most जो थे, 1940 में according to a study, it said a poll of 8,000 people found that 0.6% of Spain's adult population said they had suffered sexual abuse by members of the clergy when they were still children. That's shocking.
Now, Malaysia on Friday chose 64-year-old Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, right in the photo from the southern state of Johor, to be the country's next king. The position is largely ceremonial, मतलब ज़्यादा कुछ powers नहीं है, ceremonial ज़्यादा है position, the position of the king in Malaysia, but oversees major appointments such as prime minister and serves as the head of Islam in the Muslim majority country. We're going to note down both of them. First, this one. तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अलग सी न्यूज़ है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी in a poll of about 8,000 people, found that 0.6% of Spain's adult population suffered sexual abuse by Roman Catholic clergy as children since 1940, which is really shocking. They had their own trauma going on, that too by the clergy. Now, Malaysia chose Sultan Ibrahim Sultan Iskandar as the next king of the country. ठीक है, अब यहाँ पे इसके सब पॉइंट्स बनेंगे. पोजिशन इज लार्जली ceremonial but oversees major appointments such as PM, serves as the head of Islam in the Muslim majority country. अब अगर मुझे इसका वेब डायग्राम बनाना हो टू लर्न, तो मैं कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले नाम, सुल्तान इब्राहिम इस्कांडर, ठीक है ना. ये कांड करता रहता है, इस्कांडर ऐसे याद कर सकते हैं कि मुझे ना सूली पे चढ़ा दे कोई ऐसे नाम बोलने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर हमें पता है, एक मिनट, ये हमको ऐसे ही लिखना है. तो हम क्या करेंगे, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कांडर, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम नाम, ठीक है. इब्राहिम इस्कांडर सुल्तान, ये याद हो गया. अब ये क्या है, सेरेमोनियल है, मतलब ज़्यादा इसके पास, बेचारे के पास पावर्स नहीं है, बट अपॉइंटमेंट टू पीएम करता है, पीएम के अपॉइंटमेंट यही करता है, ठीक है ना. हेड ऑफ इस्लाम है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हैं वो मुस्लिम्स ही हैं, ठीक है. और जो एक पॉइंट था, और एक और पॉइंट जो मैं भूल गई, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्व्स एज द हेड ऑफ इस्लाम, पोजीशन इज सेरेमोनियल. नहीं, हमारे 3 पॉइंट्स बन रहे थे, नाम 3 पॉइंट्स, ये कर लिया हमारा तो हो गया, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ली कियांग हु सर्व्ड एज चाइनाज प्रीमियर फॉर अ डेकेड एंड वाज, डेकेड कितने का होता है, 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है. एंड वॉज सीन बाय मेनी इन हिज कंट्री एज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस इन एन एरा ऑफ इंक्रीजिंग. तो ये बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन माना गया है, ठीक है ना. बट ही वॉज साइडलाइंड बाय जी जिनपिंग, जो अभी के प्रेसिडेंट है चाइना के. ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, चेंज चाहता था, चाइना का भला चाहता था, ठीक है. तो या ही हैज डाइड. आईफोन मेकर विस्ट्रन बोर्ड बैक सेल ऑफ इंडिया यूनिट टू टाटा. अब यहाँ पे क्या है, ईयर्स आफ्टर गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ divesting Indian operation, Taiwan's Wistron Corp announced its board has approved the sale of its Indian unit, Wistron Infocom Manufacturing Private Limited, to the Tata Group. According to a filing with the Taiwan Stock Exchange, Wistron assembles Apple Inc. iPhone devices and components in Bengaluru. तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख लेते हैं. Yes, Taiwan's
approved sale of नोट करते जाइए जो मैं लिख रही हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें याद करना है ये पॉइंट तो कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं। ताइवान की विस्ट्रॉन कॉर्प जो है वो विस्ट्रॉन इन्फोकॉम इस नाम से इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहे हैं, ताइवान की कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया में क्या कर रही है, बेंगलुरु और होसूरू में ये लोग एप्पल के आईफोन्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो असेंबल करते हैं, ठीक है। अब ये किसको बेच दिया इन्होंने, ये टाटा ग्रुप, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया फॉर $125 बिलियन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, तो ये हमको लर्न करना है। साउथ अफ्रीका बिकम्स फर्स्ट टीम टू रजिस्टर 2 1 विकेट विन्स इन WC। साउथ अफ्रीका बीट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन ODI वर्ल्ड कप since 1999, having previously lost in 2015 and 2019. The 1 wicket win is just the 7th such instance in competition, and they are the only team to do this twice. Their other 1 wicket victory came against Sri Lanka, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, South Africa becomes first team to register 2 1 wicket wins in वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। पहली उनकी कब हुई थी, पहली उनकी 2007 श्रीलंका के अगेंस्ट हुई थी, और सेकंड उनकी 2023 में पाकिस्तान के अगेंस्ट हुई है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पहली ऐसी टीम बनी है जिसने 2 1 विकेट विन्स जो हैं वो करी हैं। क्या करी है, साउथ अफ्रीका ने ऐसी कंट्री बनी है जिसने दो बार 1 विकेट विन्स जो हैं वो करी हैं। किस किस के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट 2007 में, पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये है हमारा 1 विकेट विन्स क्या होती है, व्हाट इज 1 विकेट विन्स, ये आप किसी को पता है 1 विकेट विन क्या होती है। 1 विकेट वेन एवर द टीम बैटिंग लास्ट एट द टाइम ऑफ रीचिंग द टारगेट रीचेज द टारगेट विदाउट लूजिंग ऑल देयर विकेट्स इन द इनिंग, ठीक है ना। मतलब जो टारगेट है वो अचीव कर लें विदाउट लूजिंग अ विकेट, अचीव द टारगेट विदाउट लूजिंग विकेट। बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है। चलो यहाँ पर if you want to buy our lectures you can go to www.logiri.in। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड वहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज़ आपको क्लासेस भी मिल रही हैं और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है डेली क्लासेस लगाने के लिए, देन इन्वेस्ट इन दीज। ये ₹250 पर मंथ में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, और अगर आप ये बाय करते हैं तो 6 to 8 आवर्स के अंदर आप फुल मंथ, मतलब इतना कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे और फुल मंथ का आपका जो करंट अफेयर्स है वो हो जाएगा। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। आपकी रिवीजन नहीं हो पा रही है, आपको रिवीजन के लिए हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और फिर नोट्स भी आपको
मिल जाएंगे। ठीक है, डेली नोट्स अगर आपको चाहिए, मतलब जो ये वाले नोट्स मैंने बनाए हैं वो आपको चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ ₹100 में अवेलेबल हैं। एंड हमारे मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो गए हैं। वी हैव 2 मॉक टेस्ट एज ऑफ नाउ विच आर रनिंग। अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वी हैव CUET PG, ठीक है, एंड MHCET 3 इयर्स के मॉक टेस्ट जो हमारे अभी लाइव हैं, तो आप ये बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिल रही है मॉक टेस्ट के साथ साथ। तो यस, दैट्स इट। कल मिलेंगे 6 PM पे। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ द स्टोरीज, एनीथिंग, देन डू कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज वो मुझे मोटिवेट करते हैं टू कम here every day and explain you things. That's it. Eduidi signing off. See you at 6 PM tomorrow. Bye.